Good afternoon, class 6th. As we were doing the test paper number 4, on page number 102, we have completed that. Read the following passage, we have done that. B part also we have done and C part also we have done. So now we have to start with the D part, that is on page number 103. Put the words in the right order to make the sentences. First one is done for you. Already have seen I the museum. I have already seen the museum. These are the jumbled letters and you have to unjumble it and write it in the correct order. Has not seen the bridge crossed yet. She has not yet crossed the bridge. I already been have to the castle. I have already been to the castle. Not yet been have to Paris. Have you not been to Paris yet? Spent much money. I not yet. I have not yet spent much money. Lots of photos have I already taken. I have already taken lots of photos. Next, E part. Change the order of the following words, parts to make the word that matches the definition. So in this you have been given 3 parts of the word and you have to unjumble it and write it in the correct way. Ly incorrect. So this word becomes incorrectly. Second word is able, enjoy. That means lots of fun. So this word will be enjoyable. Third one, add unwant. So this is not needed, means unwanted. Fourth word is meant unemploy. That is not in job, means unemployment. Fifth word is able unreason, means not fair, unreasonable. Sixth, able unsuit, means not good enough. That means unsuitable. Seventh, unable comfort, not feeling good. That is uncomfortable. Eighth is full unsuccess. That is failure, means unsuccessful. So here are the words, you can write it. Enjoyable, unwanted, unemployment, unreasonable, unsuitable, uncomfortable, unsuccessful. Now we come to the F part, that is use the following homophones in your own sentences to differentiate their meanings. So what are homophones, bache? Do you know about that? Homophones are the word that are spelt in the same way but their spellings are different as well as their meanings are also different. Now take the example of the two words fair and fair. Fair is also called as fair. Fare, that is also called as fair. The pronunciation of these two words are same, but the spellings you notice are different and their meanings are also different. So the words which are spelt same or pronounced in the same way are called homophones, but at the same time they have different meaning and different spellings. Fair. फेयर मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक, सो वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो. और वी कैन से हम हिंदी में भी बोलते हैं, जिसे आप मेला टाइप्स बोलते हैं, उसको भी हम फेयर बोलते हैं, FAIR, उसके भी स्पेलिंग फेयर होते हैं. तो इसमें हमने सेंटेंस बनाया है, वेयर इज़ योर फेयर नोटबुक विद द इंटेरोगेटिव साइन एट द एंड. Second fare is FARE. Fare means kiraya. The fare of this ride is quite high or quite much. Means इस ride का जो fare है वो काफ़ी ज़्यादा है. Beat, BEAT, beat. That means मारना किसी को. Don't beat your friend. Beet, BEET, beet is the beetroot, I think. That is, eating beetroot is good for health. Next word is root. What is the root cause of this disease? Means root cause means the इसकी जो है
इस बीमारी की जो जड़ है, रूट मीन्स यहाँ पे जड़ आ जाता है। तो व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज़, क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे, मैं भूल गई। यहाँ पे सेकंड वाले में भी आप फेयर के जो है स्पेलिंग ठीक कर लेना, FARE है, मैंने FAIR लिख दिया बाय चांस, बाय मिस्टेक। सो थर्ड वन का सेकंड पार्ट इज़ रूट, ROUTE, रूट। ये रूट होता है बच्चे रास्ता, जिसे हम कहते हैं कि ये जो रास्ता है यहाँ पे निकलता है या वहाँ निकलता है, तो इंग्लिश में हम इसे रूट बोलते हैं। दिस रूट ऑफ बस इज़ वेरी लॉन्ग, कि ये जो रूट है बस का वो बहुत लॉन्ग है। पीस, आई वॉन्ट पीस इन माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री में पीस चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है। PIECE, पीस मीन्स एक टुकड़ा, जिसे हम बोलते हैं गिव मी वन पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा ब्रेड का। सेल, CELL, सेल हमारा सेल फोन भी हो सकता है, या आपकी बैटरी में जो सेल डलते हैं, या आपकी वॉल क्लॉक में जो सेल डलते हैं, या रिमोट में जो सेल डलते हैं, वो वाले सेल भी हो सकते हैं, बट उनको हम बैटरी भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ सेल फोन वाला सेल यूज़ किया। माई सेल फोन इज़ नॉट वर्किंग। देन SELL, सेल मीन्स किसी चीज़ को बेचना। ठीक है। वी वॉन्ट टू सेल आर कार, और वी वॉन्ट टू सेल आर हाउस, एनीथिंग यू कैन राइट विच यू वॉन्ट टू सेल। I hope it is clear to all of you that homophones are the words that are spelt in the same manner, but they have different spelling as well as different meaning also, right? Like fair, FAIR, fair मेला भी होता है। FAIR, fair means आपकी जो फेयर नोटबुक है, और यू कैन राइट डाउन द सेंटेंस ऑफ दिस फर्स्ट वन, फेयर, दैट आई वेंट टू द फेयर लास्ट वीक, कि मैं एक फेयर में गया था, या आई इंजॉयड अ लॉट इन दिस फेयर, मैंने इस फेयर में बहुत इंजॉय किया। ठीक है। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज होमोफोन्स। So now with this we have completed our unit number 5, and we come to unit number 6, that is mystery. Now our last unit starts with the mystery. Now what is mystery? Can you tell me? Mystery बच्चे एक ऐसी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस विच यू कैनॉट अंडरस्टैंड और यू कैनॉट एक्सप्लेन, कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ऐसी अनसॉल्व्ड सी चीज़ें जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मिस्ट्री, राइट? सो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज। स्विच ऑन योर TV सेट एंड यू विल कम अक्रॉस मिस्ट्रीज ऑन मैनी चैनल्स। तो आप जैसे TV पे बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी सीरियल्स आते हैं जो जिनमें बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व होती हैं, उनको हम डिटेक्टिव सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है। उनमें से बहुत फेमस जो रहा है वो है CID। इट हैज़ रन ऑन TV फॉर आई थिंक 14 और 15 years continuously. So that is also, they used to solve the mysteries in their serials, right? So mysteries are the things that we cannot understand or that we cannot explain. So there are many such serials and many movies are also made on such mysteries, कि जो आपको कभी ऐसी बातें, ऐसी एक्सपीरियंसेस जो आपको कभी समझ ही नहीं आया, या आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ये चीज़ कैसे हुई। स्विच ऑन योर TV सेट एंड you will come across mysteries on many channels. So that is what I was saying, कि TV channels, TV sets पे you will come across so many mysteries on your channels. So have you experienced some strange happening in your life which has left you confused till now? तो बच्चे लाइफ में भी हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी कोई स्ट्रेंज हैपनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी कोई अजीब सी घटना एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे कई बार होता है, तो आपने फील किया होगा कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को, कुछ बड़ा अजीब सा हो जाता है, कुछ बड़ा मतलब अनयूजुअल सा, स्ट्रेंज सा हो जाता है। सपोज़ कई बार कोई कहता है कि मैं ऐसे एक रास्ते पे जा रहा था, तो मुझे एक वहाँ पे लेडी मिली,
and she was wearing the white clothes, white sari and all that, things like that. So sometimes when somebody tells you about his experience, so you feel as if he is just lying, कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी बातें डज नॉट हैपन एवरी डे. सो दीज थिंग्स हैपन वेरी रेयरली, बहुत कम होता है ऐसा, या बहुत ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं जो जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिन्हें आप समझ नहीं पाते कि ये क्यों हुए और कैसे हुए. सो उन चीज़ों को हम मिस्ट्री कहते हैं. और कई बार लाइफ में भी हमारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, स्ट्रेंज सी हैपनिंग्स हो जाती हैं, जो हम सारी ज़िंदगी उसको कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मीन्स वो आपको इंसिडेंट कंफ्यूज करके रखता है. So you might have read the mysterious stories of a man died several years ago, resurfacing in Arthur Conan Doyle's The Crooked Man. So now here they are giving the reference of the novels. तो ऐसी स्टोरीज़ भी बनती हैं राजे. ऑथर्स जो हैं, राइटर्स हैं, वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, स्टोरीज़ भी लिखते हैं. तो ऐसे ही वो एक आर्थर कैनन डॉयल राइटर हैं, ऑथर हैं, उनकी स्टोरी बता रहे हैं, द क्रूकेड मैन. तो क्रूकेड मैन में क्या हुआ है, मिस्टीरियस स्टोरी है ये इस नावल में, कि अ मैन डाइड सेवरल ईयर्स अगो, कि एक मैन की डेथ हो गई है सेवरल ईयर्स हो, काफ़ी साल पहले. रीसरफेसिंग मीन्स वो दोबारा से पैदा हो जाता, पैदा नहीं मीन्स दोबारा से वो नज़र आने लग जाता है. तो ऐसा है इस नावल में, द क्रूकेड मैन. रीसरफेसिंग मीन्स वो दोबारा वापस आ जाता है, रीसरफेसिंग, ठीक है. सो यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड द नेम बरमूडा ट्राइंगल. तो आपने ये नाम भी सुना होगा, बरमूडा ट्राइंगल. ये काफ़ी फेमस नावल है. दैट सक्स एवरीथिंग इन इट मीन्स ये भी बहुत मिस्टीरियस नावल है. इसकी भी जो स्टोरी है आज तक अनसॉल्व्ड, द मिस्ट्री इज़ स्टिल अनसॉल्व्ड, कि इसकी जो मिस्ट्री है वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया. ऐसी मिस्ट्री है बरमूडा ट्राइंगल. एंड द बरमूडा ट्राइंगल की वो ज़्यादा बोल रहे हैं. सो द क्रूकेड मैन में तो वो बताते हैं कि अ मैन डाइड सेवरल ईयर्स अगो एंड देन ही रीसरफेसेस, मीन्स ही कम्स बैक अगेन. बट इन द बरमूडा ट्राइंगल दे से दैट इट्स अ वेरी वेरी हेयर रेजिंग स्टोरी, मीन्स जिससे आपके बाल जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसी वाली थ्रिलिंग स्टोरी है. मिस्ट्री है जिसमें जो कभी भी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है. मिस्ट्री इज़ अनसॉल्व्ड, स्टिल अनसॉल्व्ड. द यूनिट मिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस. तो इस यूनिट में वी हैव 4 sections. एवरी यूनिट हैव 4 sections. द फर्स्ट वन इज़ वाई बर्ड्स कमिट सुसाइड, which we will start now just after this introduction. And after 20 years there is the second section, that is after 20 years. The third one is a face in the dark and why. The face in the dark and why. These sections are full of strange mysteries. Try to solve these mysteries. So now we come to face in the dark. face in the dark नहीं लिखा उन्होंने, हाँ फेस इन द डार्क भी लिखा है. एंड वाई, एक वाई की स्टोरी होएगी आफ्टर 20 ईयर्स. एंड वाई इज़ अ पोएम. सो नाउ वी कम टू द लेसन. सेक्शन 1 ऑफ यूनिट नंबर 6, ओपन पेज नंबर 105. वाई बर्ड्स कमिट सुसाइड. डू बर्ड्स कमिट सुसाइड? आपने कभी सुना बर्ड्स ने सुसाइड कमिट की हो? कभी सुना है आपने ऐसा? मैंने तो नहीं सुना बिल्कुल भी. डू बर्ड्स कमिट सुसाइड? कमिट सुसाइड मीन्स सुसाइड क्या होता है? आत्महत्या, सेल्फ मर्डर. तो हैव यू एवर हर्ड कि कभी आपने सुना कि बर्ड ने आत्महत्या की हो, बर्ड ने सेल्फ मर्डर किया हो? लोग तो करते हैं, लोग तो मरते हैं, सेल्फ मर्डर होता है, बट मैंने कभी बर्ड्स का तो नहीं सुना है. So this was the foremost question in the minds of bird enthusiasts. तो ये जो क्वेश्चन था सबसे फॉरमोस्ट मीन्स सबसे पहले यही क्वेश्चन लोगों के माइंड की कौन से किन के माइंड में आ रहा था? बर्ड एंथुजियास्ट्स मीन्स जो बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन फॉरमोस्ट मीन्स सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा था. एंड दोज ऑफ आइडियली क्यूरियस मीन्स जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं कि वाई दिस हैपेंड और वेयर दिस हैपेंड, वाई दिस हैपेंड,
क्यूरियस मीन्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से बना है, क्यूरियोसिटी मीन्स क्यूरियस से बना है. So this question was coming that whether the birds also commit suicide. So this question was coming in the minds of bird enthusiasts, the people who are very much interested in birds and their survival, and ideally curious means the people who just are very curious about each and everything. So birds come in hundreds to Jatinga and die. So we are going to discuss about one incident here. Birds come in hundreds. बहुत सारे birds hundreds में, hundreds means they can be 300 or 400 or 500 जातिंगा में आते हैं and they die, और वहाँ वो मर जाते हैं. So let's start. जातिंगा क्या है? What is जातिंगा? It's a small tribal village and Assam's only hill station. तो ये जो वो है village है एक छोटा सा असम में, असम में, और ये वहाँ का ओनली हिल स्टेशन भी कहलाता है. ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट हिल स्टेशन? जातिंगा. नाउ द बर्ड्स आर ट्रैप्ड बाय बर्ड लाइटिंग एट जातिंगा. बर्ड्स आर ट्रैप्ड बाय, ट्रैप्ड होता है फंस जाना, किसी को फंसाना या फंस जाना. ठीक है. बर्ड्स आर ट्रैप्ड बाय बर्ड लाइटिंग एट जातिंगा, कि जो बर्ड्स थी वो लाइटिंग में ट्रैप हो जाती थी एट जातिंगा मीन्स विलेज में. एक उनको लाइटिंग मीन्स रोशनी नज़र आती थी तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होके उस तरफ को जाती थी, लाइटिंग की तरफ, और वहीं पे वो ट्रैप हो जाती थी मीन्स फंस जाती थी. सो दे आर अट्रैक्टेड बाय आर्टिफिशियल लाइट्स. और वो कैसी लाइट थी? आर्टिफिशियल लाइट्स थी, और ऑन द डार्क मूनलेस नाइट्स. और ये जो लाइट थी आर्टिफिशियल लाइट, जैसे बल्ब की हो गई, ट्यूब लाइट्स की हो गई, या हम कई बार फायर जलाते हैं ना, बॉन फायर करते हैं, कैंप फायरिंग करते हैं ना, लकड़ी इकट्ठी करके हम लोग आग जलाते हैं जैसे लोहड़ी पे जलाते हैं. या ठंड में भी आपने देखा होगा अक्सर लोग आग जला के इकट्ठे सर्कल में बैठ जाते हैं. तो वो कैसी भी लाइट हो सकती है, आर्टिफिशियल लाइट. तो ये आर्टिफिशियल थी मीन्स कोई नेचुरल लाइट नहीं थी. तो बर्ड्स ऐसी आर्टिफिशियल लाइट से अट्रैक्ट होके दे कम दैट साइड ऑन डार्क मूनलेस नाइट्स. डार्क एक तो बहुत अंधेरी रातें, मूनलेस मीन्स उस दिन चांद भी नहीं है. ठीक है. नाइट्स, इतनी गहरी डार्क रातें थी जहाँ पे सिर्फ उनको एक आर्टिफिशियल लाइट नज़र आती थी. वो उस आर्टिफिशियल लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती थी और उस तरफ जाती थी, ट्रैप होती थी, और या तो आइदर दे आर किल्ड और ट्रैप्ड, या तो वो मर जाती थी या फिर ट्रैप हो जाती थी मीन्स फंस जाती थी. इज इट क्लियर? सो अ सिमिलर लाइट फिनोमिना अकर्स इन द फिलीपींस ऑल्सो. सो ऐसा ही ये एक और सिटी का बताते हैं. ये एक फिलीपींस जो है, इट्स अ कंट्री इन अ साउथ ईस्ट एशिया, फॉरेन कंट्री है ये. तो ऐसा ही सिमिलर लाइट फिनोमिना मीन्स ऐसा ही जो लाइट की जो प्रॉब्लम, ये लाइट का जो बता रहे हैं फिनोमिना, ये फिलीपींस में भी हुआ है इन अबाउट द सेम टाइम. इसी जिस टाइम पे यहाँ जातिंगा में हुआ है उसी टाइम पे फिलीपींस में भी हुआ है. एंड इन सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, और क्लाइमेट भी जैसा जातिंगा का था उसी क्लाइमेट, वैसा ही क्लाइमेट फिलीपींस में था, और तकरीबन वही टाइम था, टाइम पीरियड भी वही था, क्लाइमेट भी वैसा ही था जैसा कि जातिंगा में था. मीन्स फिलीपींस में भी वो कह रहे हैं कि ऐसा ही सिमिलर लाइट फिनोमिना था जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता था. सो वाइल मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर ट्रैप्ड विद व्हाट दे कॉल तवांग. नहीं, वी मिस वन लाइन. A similar light phenomena occurs in the Philippines in about the same time in similar climatic conditions. तो climate conditions कौन सी होती थी? foggy, धुंध है बहुत ज़्यादा, या windy है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, एंड द मूनलेस लाइट्स, या तो बिल्कुल अंधेरी रातें होती थी. अंधेरी रातों में कहीं आप लाइट जल रही हो तो आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बर्ड्स उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी. या बहुत फॉगी है, धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है, मिस्ट है, चारों तरफ कुछ क्लियर नहीं है, अंधेरा है और बहुत तेज़ विंड चल रही है, और एक जगह आपको लाइट नज़र आती है, तो जो बर्ड्स हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं.
while most of the birds are trapped with what they call tawang. तो वहाँ पे फिलीपींस में वो कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे ऐसे ही ट्रैप हो जाती थी. दे गेट अट्रैक्टेड टू द लाइट्स ऑन द मूनलेस नाइट्स. मूनलेस मीन्स अंधेरी रातों में. एंड व्हाट दे कॉल तवांग इन द फिलीपींस. तो फिलीपींस में वो उसको तवांग बोलते हैं. जो बर्ड्स ट्रैप हो जाती थी आर सपोज टू बी माइग्रेंट्स. और वो बर्ड्स कौन सी होती थी? माइग्रेंट बर्ड्स मीन्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो अपना जो है प्लेस बदल लेती हैं बच्चे ड्यू टू दी अनकंजीनियल क्लाइमेटिक कंडीशंस. मीन्स कई बार उनके लिए क्लाइमेट या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो एक रीजन से उड़ के दे फ्लाई टू द अदर रीजन एंड दे लिव in that particular region till the climate in their region becomes congenial, so they come back, they migrate back to their own abodes. तो उनको हम migratory birds कहते हैं, those who leave their place for some congenial climate. वो थोड़े दिन के लिए उड़ के दूसरे रीजन में चली जाती हैं. सपोज़ एक रीजन में जहाँ वो रहती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोई क्लाइमेट है, सो दे माइग्रेट टू द डिफरेंट हॉटर रीजन्स, वार्मर रीजन्स फॉर दैट टाइम पीरियड. एंड जब जो उनका कोल्ड रीजन है वो थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है, वार्मर हो जाता है, सो दे कम बैक टू देयर रीजन. सो माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं. सो दे आर सेइंग कि तवांग इन द फिलीपींस आर सपोज टू बी माइग्रेंट्स. तो फिलीपींस में what they call tawang in the Philippines are supposed to be migrants. Those at Jatinga are not necessarily so. बट फिलीपींस में वो मानते हैं कि ये जो ट्रैप होती थी बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती थी जो अक्सर दूसरे प्रदेश से आई हैं कुछ क्लाइमेट के चेंज के वजह से. मीन्स वहाँ ठंडा है तो वो गर्म रीजन में आई हैं, अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो थोड़े ठंडे रीजन में चली जाती हैं. तो फिलीपींस में वो कह रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेंट बर्ड्स हैं, बट जातिंगा में ऐसा कुछ नहीं है. जातिंगा में जो बर्ड्स सुसाइड कर रही हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो माइग्रेटरी ही हों. ट्रू, द विलेजर्स ऑफ जातिंगा किल्ड द बर्ड्स फॉर देयर टेबल. वन थिंग इट इज़ ट्रू कि जो जातिंगा के विलेजर्स थे वो बर्ड्स को किल करते थे फॉर देयर टेबल मीन्स खाने के लिए. ठीक है, बट दे ट्रीटेड इट एज अ स्पोर्ट. पर वो इस चीज़ को एक गेम की तरह लेते थे, स्पोर्ट की तरह. शूटिंग, ठीक है ना, स्पोर्ट की तरह लेते थे. मीन्स द विलेजेस डू नॉट बीट्रे एनी सेंस ऑफ गिल्ट. और उसके बाद वो दे यूज टू किल द बर्ड्स फॉर देयर टेबल मीन्स दे यूज टू किल द बर्ड्स फॉर ईटिंग. सो आफ्टर दैट दे डिड नॉट फेल्ट एनी गिल्ट. उनको कोई उसमें गिल्ट नहीं फील होता था. उनको ये नहीं लगता था कि हमने इनको मार के कुछ गलत किया है. मीन्स आपको जैसे कोई आप काम गलत करते हैं तो उसके बाद आपको बुरा लगता है ना, कि गिल्टी फील करते हैं कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था. बट उन विलेजर्स को, जातिंगा के विलेजर्स को ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई जो है किसी का फेथ जो है उस किसी को धोखा दिया है. उनके मन में ऐसा कभी नहीं आया. दे हैव काउंटर्ड अवर शॉक डिसबिलीव. और अगर उनको कोई बोलता भी था कि आप ऐसे क्यों मार रहे हैं बर्ड्स को, तो इस चीज़ को उन्होंने दे हैड काउंटर्ड अवर शॉक्ड डिसबिलीव बाय आस्किंग डोंट यू किल फिश इन द प्लेन्स इन अ सिमिलर मैनर विद द ईयर्स फर्स्ट फ्लड. तो वो उल्टा हमको ही बोलते थे, जो उनको ये बोलता था कि वाई यू आर डूइंग दिस थिंग, डोंट यू फील गिल्टी. तो वो उल्टा जवाब ये देते थे, क्या आप लोग नहीं फिश को मारते इन द प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स एक तो हिली रीजन होता है, एक प्लेन्स होते हैं जहाँ पे पहाड़ ना हो. तो वो ये बोलते थे कि क्या आप लोग भी तो फ़िश को मारते हैं प्लेन्स में, जैसे कि इन द सिमिलर मैनर विद द ईयर्स फर्स्ट फ्लड, कि जब फर्स्ट फ्लड आता है तो आप भी तो फ़िश को खाते हैं मार के. तो अगर हमने बर्ड्स को ऐसे मार के खा लिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. उनको ये लगता था कि इसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया. दे कंसिडर्ड द कमिंग ऑफ बर्ड्स टू बी ए गिफ्ट ऑफ गॉड्स. तो उनको ये लगता था कि ये जो बर्ड्स इधर आ रही हैं ना हमारे गांव की तरफ, तो ये भगवान ही भेज रहा है. इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की देन है. दे नेवर थॉट कि ये कोई हम गलत काम कर रहे हैं. जातिंगा इज़ जेमे नागा वर्ड.
तो जो जातिंगा है वो क्या है? जेमे नागा वर्ड मीनिंग पाथवे ऑफ रेन एंड वाटर। जेमे नागा मीन्स बारिश का और पानी का रास्ता, पाथवे ऑफ रेन एंड वाटर। In 1890s, some Jeme Naga people came to survey the area. तो 1890s में क्या हुआ? सम जेमे नागा जो पीपल थे दे केम टू सर्वे द एरिया, वो उस एरिया को सर्वे करने आए और वहाँ पे दे कैंप देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगाया फॉर 2 और 3 डेज। कपल मीन्स 2 डेज होता है, वैसे 2 होता है, कपल क्या होते हैं? 2। कपल मीन्स 2, सो मीन्स दे सम जेमे नागा पीपल केम टू सर्वे दैट एरिया। उस जगह का वो सर्वे करने आए, तो दे जस्ट कैंप्ड देयर फॉर 2 डेज। सीइंग देयर कैंप, और उनका कैंप देख के क्या हुआ? फायर बर्ड्स गॉट देयर सीइंग देयर कैंप फायर्स। तो वहाँ पे कैंप लगाते थे तो रात को वो कैंप फायरिंग करते थे, आग लगाते थे, ठंड होती थी ना, वहाँ हिल स्टेशन है ये असम का। तो वहाँ पे उनकी कैंप फायर को देख के जो बर्ड्स थी अट्रैक्ट होके उस तरफ आती थी, विच दे सस्पेक्टेड समथिंग मिस्टीरियस। तो जैसे जैसे उनकी वो कैंप फायरिंग को देख के बर्ड्स उस तरफ आती थी, तो इनको लगा कि ये तो बड़ा सस्पेक्टेड मीन्स उनको इस चीज़ पे बड़ा शक होने लग गया कि ये क्या अजीब सी चीज़ हो रही है, ये क्या अजीब सी घटना हो रही है कि हमने ऐसे आग लगाई है, हम लोग आग सेक रहे हैं और जो ये बर्ड्स हैं ये हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्ट बाय आर कैंप फायरिंग। तो वो ये सोचने लगे कि ये क्या चक्कर है, क्या है ये मिस्ट्री, क्या है इसके पीछे कि द बर्ड्स आर अट्रैक्टिंग towards the fire and thought better of permanently setting in that area। और जब उन्होंने देखा कि बर्ड्स हमारी कैंप फायरिंग पे इतनी अट्रैक्ट होकर इधर इधर आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो पहले तो वो 2 दिन के लिए आए थे, फिर उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ पे ही परमानेंट सेटल हो जाते हैं। इवन नाउ इन द लोमरोन हिल देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हम परमानेंट सेटल हो जाते हैं। बट दे आर सेइंग दैट लोमरोमोम जो हिल है असम में, वहाँ पे भी अभी हम देखें तो दे आर सेइंग कि देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कि आज की डेट में भी लोमरोमोम में कोई भी परमानेंटली नहीं रहता है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट देयर। So the people of Jatinga and one of the neighboring areas consider that place is unhealthy for human settlement। तो पीपल ऑफ जातिंगा मीन्स जातिंगा विलेज के जो पीपल थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये एरिया है, पीपल ऑफ जातिंगा और नेबरिंग एरियाज़, उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला कि ये जो जगह है ह्यूमंस के रहने के लिए अनहेल्दी है, मीन्स ये ठीक नहीं है। बर्ड्स कम इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। तो बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स आते थे अगस्त टू अक्टूबर के मंथ्स में ऑन फॉगी मूनलेस नाइट्स, धुंध वाली डार्क रातों में। इवन इन जुलाई एंड नवंबर बर्ड्स अपीयर। जुलाई और नवंबर में भी बर्ड्स दिखती थी, बट इन डिसाइडेडली फ्यूअर नंबर्स, पर इतनी ज़्यादा नंबर में नहीं होती थी जुलाई में और नवंबर में। द टाइम ऑफ फिनोमिना अकरिंग कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ माइग्रेशन। तो जिस टाइम में बर्ड्स आती थी ना, तो वो अक्सर वही टाइम होता था जो माइग्रेशन का टाइम होता है। समझ गए आप मेरी बात? मीन्स ज़्यादा बर्ड्स कब आती थी? अगस्त से अक्टूबर में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है अगस्त से अक्टूबर में। अक्टूबर में तो हो ही जाती थोड़ी सी ठंड, फॉग तो वैसे भी वो हिल स्टेशन है तो वहाँ पे जल्दी पड़ जाती है। तो दे आर सेइंग कि जुलाई और नवंबर में भी दिखती थी बर्ड्स, बट नॉट इन दैट लार्ज नंबर, इन लेस नंबर। द टाइम ऑफ फिनोमिना अकरिंग, तो ये जो फिनोमिना होता था आने का और ट्रैप होने का, ये सेम होता था माइग्रेशन के टाइम पे। इट कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ माइग्रेशन, मीन्स जिस टाइम में वो माइग्रेट करती थी उसी टाइम में ये वाला इंसिडेंट होता था। ये जो वैली है जातिंगा की, दिस फॉल्स ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ लोकली माइग्रेटिंग बर्ड्स लाइक बोरेल। तो जो ये वैली पड़ती है, जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोमरोन हिल है, जो यहाँ का जो एरिया उन्होंने बोला कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो
ये जो वैली पड़ती थी ये माइग्रेटरी रूट के रास्ते में पड़ती थी, जहाँ से लोकल बर्ड्स थी वहाँ की बोरेल, वो अक्सर माइग्रेट करती थी। माइग्रेट मीन्स वो लोग उड़ के दूसरे रीजन में जाती होती थी, जब तक कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है तो वो थोड़े वार्मर रीजन में चली जाती थी। तो जो ये वैली थी ये रास्ते में पड़ती थी उनके माइग्रेटरी रूट के। And all the 37 species that have been observed and recorded in this area are local migrants. और जितनी भी 37 हमने species इसमें observe की हैं वो सारी local थी, local birds. On moonlit nights with fog, species like pond heron and cattle egret were seen moving further south in small flocks. तो ऐसी ही रातों में ऐसी रातों में जहाँ जब मून ना निकला हो, मूनलेट नाइट्स, अच्छा मूनलेट नाइट्स मीन्स जिन रातों में मून नज़र आता था, मून की रोशनी होती थी, विद फॉग, और फॉग भी रहती थी, धुंध भी रहती थी। तो कौन सी स्पीशीज़ नज़र आती थी? पॉन्ड हेरॉन एंड कैटल एग्रेट, ये दो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। ये अक्सर आपको साउथ की तरफ स्मॉल फ्लॉक्स मीन्स ग्रुप्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये साउथ की तरफ आपको फ्लॉक्स में जाती हुई ओवरकमिंग दिस रिज नज़र आती थी। दीज स्पीशीज़ वर लेटर आफ्टर द फिनोमिना, दीज स्पीशीज़ वर लेटर आफ्टर द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड एट हरन गजाओ। तो ये जो स्पीशीज़ थी ये कहाँ पे मिलती थी? देवर ऑब्जर्व्ड एट हरन गजाओ। तो ये फिनोमिना ऑब्जर्व्ड एट हरन गजाओ प्लेस अबाउट 10 किलोमीटर अवे इन द साउथ विच इज़ आइडियल हैबिटेट फॉर दीज स्पीशीज़। तो ये जो स्पीशीज़ मैंने आपको बताई अभी, हेरॉन एंड कैटल एग्रेट, ये उड़ के माइग्रेट करके कहाँ जाती थी? हरन गजाओ, ये वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था साउथ में। तो ये जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी विच इज़ आइडियल हैबिटेट फॉर दीज स्पीशीज़, तो ये जाके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहने लग जाती थी, जब तक कि क्लाइमेट उनके वाले पुराने अबोर्ड में कंजीनियल नहीं हो जाता था। दे यूज टू माइग्रेट इट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So in the next lecture we will do the word meanings as well as the question answers. So all of you are supposed to read the lesson and try to understand it.